Okay, so good evening, everyone, and thank you very much for joining. So, all of you are like really old members of the society, so I don't have to repeat the rules and what we do here. Not exactly rules, but some regulations to some extent, right? And you guys know that currently in the reading session, apart from the book that we are doing, apart from the great book that we are doing, we are also reading the submissions from the event that Sahityika conducted. By the way, Sahityika is conducting some amazing events. They have recently launched another one, Convince Me, and Berlin and Minu, they are heading the society. So if you guys are interested in those events, you can definitely register. I think Convince Me ka registration is still going on, right? So that is there. But yeah, so the first phase of reading session is comprising of the submissions which were done. Yeah, exactly. It is definitely going to be fun, guys. It's a very novel event. So the submissions which were made under the umbrella of Ink What You Think, right? And today is the third Ink What You Think day. And tonight we will be reading the entry which was made by Swan here, okay, our beloved Rizzi. Just before starting, I would like to say that Swan has been writing poems for the last 84 to 85 days. Okay, this is a streak that he is trying to follow. And if you guys have read all of his poems from day one, even if not all of them, but if you have followed his progress, you would see the refinement he has done. And I remember a few sessions back, he we had read this one poem that he had written about dinosaurs, and that was really heart wrenching. Beautiful conclusion that poem had. And ekdam professional level, absolutely, he is following the mantra of Stephen King that writing is a job and you should treat it like a job even if you are not getting paid, and you should do it every day. And that is how Swan visibly refined his skills. Okay. Having said that, tonight we are going to read what Swan had submitted, and the title of the piece is The Afterlife. Okay. And you can see that he has chosen this image from Howl's Moving Castle, the same one that was chosen by Vignesh in our last session, right? Let me just make it a little bit smaller. So, yeah, Howl's Moving Castle, a beautiful Ghibli movie. Just a second, guys. Sorry for these sudden pauses. Many a times you have to deal with people. Nevertheless, so yeah, this is a beautiful picture. Definitely, Studio Ghibli makes amazing, magnificent art, and so is Swan Space. So, Afterlife by Swan Burma. The air felt alive, cool, fragrant, and full of an energy that coursed through every leaf, every petal, every ripple of water. The gardens stretched endlessly, vibrant and perfect, as if no blemish had ever dared touch this place. Rivers of crystal clear water wove through fields of flowers, their colors so vivid they seemed to sing. The sky above was a canvas for hues that defied the imagination, as if an artist had captured the colors of the soul and splashed them across eternity. He stood there, soaking in the surreal beauty, when his gaze fell on a figure at the top of a gentle hill. The silhouette was unmistakable. The tilt of her head, the ease in her posture, it was her. She stood amidst the golden rays of a sun that didn't burn, as if she belonged to the light itself.
His breath caught, though breathing was no longer a necessity here. He began walking, his steps light, as though gravity had surrendered to the weightlessness of this world. When he reached her, there were no words at first. She turned, her face breaking into a smile that could have lit up entire galaxies. They stood there, silent but not empty, their gazes holding everything they had once said and everything they had left unsaid. Finally, he whispered, "Is it really you?" She reached for his hand, and her touch was as familiar as sunlight warming his skin on a winter morning. "It's me," she said, her voice soft, steady, and carrying the kind of certainty that felt like coming home. They began to walk side by side along a path lined with blossoms that seemed to bloom just for them. Every step was accompanied by the gentle hum of life, rivers bubbling in the distance, birds singing songs that resonated deep within, as though they carried memories from life now far behind. The breeze was fragrant with jasmine and something indescribable, something eternal. He turned to her, a soft smile tugging at his lips, though his heart felt heavier than it should in a place like this. "Do you think this is what eternity feels like?" he asked, his voice barely more than a whisper. She didn't answer immediately. Instead, she tilted her head back, closing her eyes as the gentle breeze played with her hair. The strands moved like threads of light, catching the glow of the sun that neither burned nor faded. For a moment, she seemed to be listening to the rustling of the leaves, the babbling of distant streams, and the quiet thrum of existence itself. Then, with a smile that seemed to hold the warmth of 1,000 dawns, she leaned her head on his shoulder and said, "No, this is what love feels like." Her words lingered in the air, hanging like a note of music that refused to end. He blinked as though he hadn't quite understood her. "Love? Yes," she replied, her voice steady and soft, like the hum of the world around them. "Not the love we spoke of in life, not the love we tried to protect or fought to keep alive." She sat up slightly, her eyes. Sorry, guys. She sat up slightly, her eyes meeting his. Let me just have some water. Sorry. She sat up slightly, her eyes meeting his,
the light in them as endless as the horizon. This is love in its purest form. No fear of loss, no need to prove it, no conditions to meet, just this. She gestured around them, her hand sweeping the vast expanse, the skies, the rivers, the blooming flowers that seemed to bow towards them as if in reverence. This is the kind of love that doesn't ask for anything in return. It just exists endlessly, like the air we breathe here. You don't have to hold on to it, it will hold you. He let her words sink in, and for a moment he didn't speak. He could feel it now, what she meant. Love not as a thing to be chased or protected or mourned, but as a quiet presence that wrapped itself around them, infinite and unyielding. But how? He finally asked, his voice barely audible. How can something so perfect be real? She smiled again, her fingers gently brushing his. Because we have already known the imperfect kind. We have loved in the shadow of time, in the face of fear, through tears and silence. That love wasn't less, it was just incomplete. And maybe it's only in breaking, in losing, that we made room for this to love without limits, without endings. Her words pulled at something deep within him. Memories flickered in his mind, their laughter, their fights, the times they had fallen silent, unable to say what they truly felt. He thought of the nights he had stayed awake, terrified of losing her, and the mornings he had held her hand, wishing they had more time. It hurt, he said finally, his voice cracking. It hurt so much losing you. She reached up, cupping his face, her touch warm and steady. I know, she whispered, and it hurt me too. But don't you see, even the pain was love, trying to survive in a world too small for it. And now we are somewhere that can finally breathe. He closed his eyes, leaning into her touch. The ache he had carried for so long felt smaller now, quieter, as though it too had found peace. Is it selfish, he murmured, to want this moment to last forever? She laughed softly, the sound carrying like a ripple through the air. Here there is no such thing as selfish or forever. There's just us. And as they sat there, the sun dipping low and painting the sky in colors they had no names for, he felt it, the kind of love she had spoken of. It wasn't loud or demanding. It didn't ask to be held or understood. It was simply there,
as natural as the light around them, as endless as the world they now called home. I think sometimes silence is, you know, silence tells a lot. And this particular piece was, I don't want to compare it with anyone else's work. Everyone has worked hard, but if you look at what Swan used to write, which was good in its own right, and then you see him write this, and then you realize the growth, the refinement, जिस तरह से इसने अपनी राइटिंग को तराशा है, the way he has honed himself, that is, exemplary. You can set examples of it, out of it. And this line, I think this one line is pretty important. With this particular one, she reached up, cupping his face, right? इतना ही, her touch warm and said, this particular line, I I feel that, and I see, I'm not bringing in any sort of men versus women wala bachkana koi debate, okay? Um, what I'm trying to say is that, many a times men crave for this, you know, for someone to cup their face, for that warm touch, which tells them that it's totally okay. It is, you know, it's everything is going to be all right, right? Because देखिए, as I mentioned, I'm not trying to start a men versus women या किसका कितना इनपुट है सोसाइटी में, वैसी कोई बात मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता. I'll give you a small example. I mean, we all know at least one man who has done a lot for us, right? And I mean, we all know I'm talking about fathers, right? And when I'm talking about fathers, I don't want to, I would like to clarify that in no way I'm trying to put down the inputs of a mother, okay? It's just that currently we are talking about fathers, right? I mean, we all have seen our fathers work hard, struggle, right, and everything. And when we were young, we couldn't fathom it, right? We couldn't fathom the hard work, we couldn't fathom the struggle, because when you are young, you are sheltered, right? Nobody lets you know that, your father is probably struggling with something, or he has his own issues, his own demons to deal with. But then you grow up and you realize that growing up is just a pretense. At heart, you are the little boy or the little girl, but you have to act a certain way. You have to pretend a certain way, and then you start relating to your fathers. What kind of a burden that man would have been carrying his own life, whole life, right? And I think मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि men also crave this sort of a support, but it's just that uh, the society has created an image, and we as men for years have tried to make up for it, and we have also ensured that that image doesn't change, okay? And but I think we all the guys present here, they know what I'm talking about, right? So yeah, I mean, to be held with love by someone special, and you know to know that they will be there, they will stay, the fact that they will stay,
हर कोई रुकता नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम. People don't stay, they leave you. To know that they'll stay, that is very important. Sneha has said that those who think men don't and men are all about being strong. Absolutely. Absolutely. I think लड़कों की इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह लड़के ही हैं, मर्दों की बेसिकली. लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है. अब आदर्श, आई एम सॉरी सॉरी सर, किसी को मतलब ऑब्वियसली दुख दुख वाला समय हाँ एग्जैक्टली अरे आदर्श नहीं प्लीज. नहीं, इतना हाँ इतना सीरियस होकर नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ. वो मतलब वो जो जितना बोले हो ना, हम्म वो पूरा 100% सेम। जो पर्सपेक्टिव बोल हम्म रहे हो वही है। वही ना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है टू स्टे, राइट. मतलब एक तो you will be facing the whole world, right? It's you against the world, and they, and eventually, if they decide to leave. प्रेजेंस। Yeah, presence is very important, and if they decide to leave it, that I think that hurts more than anything that the world could do to you. स्नेहा कह रही वेयर एज लेडीज ट्राई, बट जो डर है सोसाइटी का. हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो वही है, if you have someone who will be staying back, I think you're lucky. And आफ्टर लाइफ से मुझे एक शो का याद आ रहा है. बहुत ही प्यारा शो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा. नेटफ्लिक्स पे है. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, अदरवाइज पायरेटेड जगहों पे तो मिल ही जाएगा. एंड वो भी बहुत काफी अच्छा शो है. इट इज अबाउट अ मैन whose wife dies because of cancer. ओके. एंड उसके बाद का स्ट्रगल, उसके खुद का स्ट्रगल आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर लाइफ. बहुत ही ब्यूटीफुल शो, जरूर देखिएगा. रिकी जेरविस करके एक कॉमेडियन है, ब्रिटिश कॉमेडियन, उनका शो है. मेरा मानना ये है कि जब कोई कॉमेडियन सीरियस रोल करता है तो वो फाड़ देता है. सोअन कह रहे हैं इमेजिन लूजिंग दैट पर्सन एंड देन जस्ट कीप. हाँ आई थिंक दैट इज द थिंग. आई थिंक ऐसे बहुत जो बोलते हैं ना कि यू हैव टू लाइक यू हैव टू हैव योर हार्ट shattered, बिकॉज अगर आप दुखी नहीं होंगे तो दूसरों का दुख समझ भी नहीं पाएंगे. हाँ आदर्श बोलो. मैं कुछ कुछ और बोलना चाह रहा था, भूल गया, लेकिन अब दूसरा पॉइंट में आ गया। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो. अ, एक एक ना, चलो ये आंसर करते, जिसको भी आंसर देना है। ये ऐसा, मतलब एक पर्सपेक्टिव बस बता रहा हूँ ये राइटिंग में, कि हम्म एक्सपीरियंस के हिसाब से राइटिंग जो है उसको मैं ऐसे, क्या बोलते हैं उस पे, मैं ऐसे थोड़ा, क्या बोलते हैं, हम्म, मतलब जैसे जितना इमेजिनेशन से लिख रहे हैं ना सब, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा ऐसे रेस्पेक्ट नहीं था। ठीक है। तो मैं समझ नहीं पाता था लोग ऐसे फेक चीजें, मतलब फेक ही बोल रहा हूँ ना उस चीज को, जो इमेजिनेशन वाला है, कि ये ऐसा फेक इमोशन ला के कैसे करके लिख देते हैं, मतलब वो ऐसे लिखने कैसे दे लेते हैं खुद को करके। तब वो बताने बन रहा है कि नहीं, कुछ बताओ अगर समझे तो। एक बार और एक बार बोलोगे ब्रो, मैं ढंग से समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन. जैसे, हाँ ये फिक्शन, नहीं ये तो चलो स्वर्ण लिखा कि द बेस्ट राइटर कैन स्पीक इज इट्स फिक्शन, लेकिन अम, चलो मैं किसी और दिन रिफ्रेश करके रखूंगा, अभी वो वर्ड्स में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, जितना मैं समझ पाया आपका क्वेश्चन कि रियल लाइफ से कैसे, मतलब कितना ज़रूरी होता है रियल लाइफ का एक्सपीरियंस, आई गेस, या फिर उसको कैसे आप लिख पाते हो.
नहीं, वही क्यों क्यों करते हैं ऐसा लगता है, मतलब कि जो कोई एक्सपीरियंस वाले डेटा को या पास्ट हम्म एक्सपीरियंस यूज करके कोई कोई लिखे, हम्म तो उसी को मैं थोड़ा वैलिड वैलिड मतलब वो डबल कोट्स में वैलिड ले लो, कि हाँ उसको मैं हाँ ऐसा वैलिड सोचता था, लेकिन फिर जितना फिक्शन बोल के लिखते हैं, हम्म लेकिन उसको पता नहीं, मतलब वो फेक बिहेवियर लगता है मेरे को। मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, बस मैं पुराना कुछ अच्छा, तो चार आप पांच ये बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत बनावटी उसमें क्यों डालना पड़ता है, राइट? थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा हम्म पूरा भी कभी कभी ऐसे हम्म, इमेजिनेटिव करेंगे या कुछ। राइट तो राइट अरे राइट। अभी ये यहाँ पे किसी की राइटिंग के ऊपर नहीं, वैसे चार हाँ, मैं पांच समझ रहा कोई हूँ आप क्या थॉट बोल आया रहे था। हो। नहीं, मैं बस वो पर्सपेक्टिव काफी जानना अच्छा चाह रहा हूँ क्वेश्चन है। इसमें सब लोग। वो काफी अच्छा, आपने मुझे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, काफी वैलिड क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा गाइस इसको आंसर करने का, बाकी आप लोग फील फ्री टू टर्न योर माइक ऑन और यू कैन यूज द चैट बॉक्स एज वेल, ठीक है? थोड़ा सा एलैबोरेट आंसर दूंगा, तो डोंट, एंड इफ आई एम गोइंग टू लॉन्ग एंड इफ आई स्टार्ट बोरिंग यू गाइस, फील फ्री टू लेट मी नो, ओके? सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। J.R.R. Tolkien, of course, you all know who Tolkien was, right? वो ना वर्ल्ड वॉर 1 में वो एक सैनिक थे, ठीक है? वो एक सैनिक थे। लौटने के बाद उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखी, और जब आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखेंगे या पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप उसको एनालाइज करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक चीज बार बार बोली गई है कि अ, मतलब एक तो गुड वर्सेस इवल वाला पॉइंट है ही, वो क्रक्स वही है, अच्छाई और बुराई का जो रहता है। उसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में एक चीज और बताई गई है कि बुरे काम जो होते हैं ना, वो बड़े, जो बहुत लार्ज स्केल में कोई गंदा काम करे, उससे बुरे काम डिफाइन होते हैं, ठीक है? बुरी चीजों की शक्तियां बढ़ाने के लिए आपको लार्ज स्केल में कुछ बुरा करना पड़ेगा। लार्ज स्केल मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 लोगों को मारोगे तो ही बुरा है, एक को मारोगे तो बुरा नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी की जान ले लेते हो तो वो भी उतना ही बुरा है 10 लोगों की जान लेने जितना। बट द पॉइंट इज, टोल्किन ये कहते हैं कि जो अच्छे काम होते हैं, वो अगर आप छोटे छोटे अच्छे काम भी करोगे ना, सिंपल सीधा साधा अच्छा काम, सुबह उठे, अपना बेड ढंग से झाड़ दिया, किसी से, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हो सबसे इज्जत से बात की, अगर अपने से छोटे ओहदे का कोई आदमी है उसको भी उतनी ही इज्जत दी जितना बड़े ओहदे वाले को दोगे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये ही अच्छाई की असली ताकत इन्हीं इन्हीं से मिलती है, छोटी छोटी चीजें। इसलिए अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ोगे तो आप देखना कि जो मेन क्लाइमैक्स लाने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में काफी, मतलब अगर पावर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो काफी वीक है। हॉबिट्स, ठीक है, जो कि शायद हायरार्की में सबसे नीचे आए, ठीक है? तो गैंडाल्फ जो है वो यही बोलता है कि ये छोटे छोटे अच्छे काम, पौधों को पानी देना, जानवरों का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, दूसरों की मदद करना, इन छोटी छोटी चीजों से अच्छाई की ताकत बढ़ती है। और बुरे बुरे कामों के लिए आपको बहुत कोई गंदा काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज द वीकनेस ऑफ इविल, ठीक है? ये पहली चीज। फिर आप सोचोगे कि छोटी छोटी अच्छाई से, तो चलो अच्छाई की बात, पर ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ? जब टोल्किन वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व कर रहे थे, तब उनको रियलाइज हुआ कि जिनको लड़ना है वो मैदान में नहीं है, जिनको नहीं लड़ना है वो मैदान में है। और वो कौन है? 16-17 साल के छोटे छोटे बच्चे, ठीक है? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वहां पे जो सैनिक थे, छोटे छोटे बच्चे, आप सबसे छोटे, हम लोगों की अभी जितनी उम्र है उनसे भी छोटे बच्चे, एबल्ड बॉडी, बोला जाता है एबल बॉडीड पर्सन। एबल बॉडी मतलब कौन? जो भाग दौड़ कर सकता है, बंदूक उठा सकता है, ठीक है? उठा के भेज दो भाई, ड्राफ्ट कर दो। तो इन बच्चों को लड़ना नहीं था। आप सोच सकते हैं 17-18 साल के लड़के, इनको लड़ना नहीं था इनको, पर इन्होंने लड़ाई की, जिस वजह से भी की, लड़ाई की दोनों दोनों साइड से, ठीक है? तो उन तब टोल्की ने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे इतने बहादुर थे जो अपने देश के लिए आए, लड़े, सब कुछ अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।
तो ये जो, और इनको कभी उतनी सराहना नहीं मिली जितने बड़े लोग जो ऊपर वाले जो रहते हैं, नेता ये वो लोग, इनको मिलती है ना। जैसे बोला जाता है ना कि स्टालिन ने हिटलर को हरा दिया। स्टालिन ने हिटलर को हराया कि ये छोटे बच्चों ने हराया? जंग तो बच्चे ही लड़ रहे थे ना। तो ये टोल्किन का कहना ये था कि ये जो जिनको हम छोटा समझते हैं ना, यही लोग जो है, यही लोग हमें अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं कंपेयर टू जो बड़े लोग होते हैं। ये एक पॉइंट है। अब आप बोल रहे हो कि इतना बनावटी क्यों? देखो, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप पूरा दिन बिता रहे हो, मैं सुबह उठा, मैंने खाना खाया, मैंने पनीर खाया, मैंने दाल खाई, ठीक है, मैंने कोका कोला पिया, इसको अगर आप पूरा उस हूबहू लिख दोगे ना, ये फिर एक कहानी नहीं रहेगी, ये बन जाएगी एक डायरी एंट्री। ठीक है? और डायरी एंट्री आप कब पढ़ोगे? डायरी एंट्री आप तब पढ़ोगे जब उसमें कुछ मसाला मिलेगा, है ना? अगर आपकी दादी डायरी में महीने का खर्चा कितना होता है वो आप पढ़ोगे छुप छुप के, या आपकी बहन या आपका भाई अपनी डायरी में क्या लिख रहा है अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में, वो पढ़ोगे कि अच्छा इसको फंसाऊंगा या फंसाऊंगी, राइट? तो वो मसाला, तो लिटरेचर ये हो गई दूसरी बात। ठीक है? मैंने पहले ही कहा था थोड़ा एलैबोरेट आंसर होगा, बट स्टे, मतलब ट्राई टू स्टिक टू द थॉट। ठीक है? तीसरी एक बात बताना चाहूंगा जो मैंने जावेद अख्तर से सुनी थी। ऑब्वियसली मेरे को उन्होंने बोला नहीं था, एक शो में बोला था। एंड अगर हो सके तो वो शो देखिएगा, सपन वर्मा नाम का एक कॉमेडियन है, उसके एक शो में जावेद अख्तर आए थे। पूरा शो उन्होंने काफी हंसी मजाक किया, बट लास्ट में उन्होंने एक चीज कही। उन्होंने ये कहा कि लिटरेचर, आर्ट, इन सब चीजों पे बात हो रही थी। अच्छा, उससे पहले मैं आई वुड लाइक टू आस्क, हैज एनीवन सीन दैट पर्टिकुलर शो? Javed Akhtar had come to Sapan Verma's show, and स्वर्ण ने लिखा है। Swan has seen it, right? Yeah. I think Swan और मेरी इस बारे में बात भी हुई थी. So, he said that Anusha is saying that he has loved this video. Biswa wala, exactly, exactly. Now, the thing is, Javed Akhtar and art, and all these things were being talked about, and then he says that why this is important, ये क्यों जरूरी है लिखना, फिक्शन, ये सब क्यों जरूरी है, ठीक है, ये बनावटी या जो भी आप कह लो, ये क्यों जरूरी है? तो वो बोलता है कि जावेद अख्तर बोलते हैं कि आज के दिन में आपने सबने सुना होगा कि सेव टाइगर्स, है ना, सेव ये कोई एनिमल, कोई बर्ड्स का, अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, कॉन्जर्वेशन होना चाहिए। बट कभी आपने ये सुना है कि स्टॉप फिशिंग या बैन फिशिंग? कभी नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना है। ठीक है? गांव जाएंगे तो मछली पकड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। फिर जावेद अख्तर जी बोलते हैं कि इफ यू इमेजिन व्हाट फिशिंग इज फॉर अस, इट कुड बी कि हम रिटायर हो गए, हाँ चलो भाई हम रिटायर हो गए, अभी दोस्तों के साथ वी आर हैविंग बियर एंड फिशिंग, एंड इट्स अ वेरी ट्रैंक्विल थिंग। बट इफ यू थिंक इट फ्रॉम द फिशेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में ही घूम रहे हो, ठीक है, आप अपने घर में ही घूम रहे हो, you're just roaming around in your house, and you go to your room and you see that your favorite food, probably chocolate, okay, or gulab jamun, and वो gulab jamun is in the air, you see a gulab jamun, okay, and you're like, shit, I love gulab jamun, let me gulp it, okay, and then you eat that gulab jamun, and as you are eating it, you feel a sharp pain on the top part of your mouth, right? And you feel that a metallic hook आपके मुंह में फंस गया है, एंड बहुत तेज दर्द हो रहा है। एंड इससे पहले कि आप संभल पाते, इससे पहले कि यू कुड समहाउ प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग, यू आर बीइंग रील्ड अप, कोई आपको रील कर रहा है ऊपर, आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हो, ठीक है, एंड देन व्हेन यू आर रीलिंग अप, आपकी सांस भी घुट रही है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, वो मुंह में आपके वो लोहा गड़ गया है, दैट थिंग हैज इम्पेल्ड योर माउथ, it is causing excruciating pain. At the same time, you are not able to breathe, you are gasping for air, and then you see that a big huge monster has reeled you up, and then he
पुट्स यू ऑन द फ्लोर और पुट्स यू ऑन अ टेबल, एंड देन वो आपका चमड़ा हटाना शुरू करता है. इट स्टार्ट स्किनिंग यू, राइट? इट स्टार्ट स्किनिंग यू, आपकी चमड़ी हटा देता है. काफी ब्रूटल है, राइट? काफी ब्रूटल सुनने में लग रहा है. दिस इज व्हाट फिशिंग इज. फॉर अ फिश, दिस इज व्हाट इज फिशिंग. हमारे लिए हो सकता है, हाँ, गांव में जाएंगे दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ मछली पकड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा. धूप सर्दियों की दोपहर में बैठेंगे पेड़ के नीचे, आराम से गप मारेंगे. हालांकि मछली पकड़ते वक्त गप नहीं मारते, बट स्टिल. बट द पॉइंट इज कि मछली के लिए, फॉर अ फिश, दिस इज अ टेरिफाइंग हॉरिबल एक्सपीरियंस. बट डू यू नो व्हाई नोबडी सेज स्टॉप फिशिंग या बैन फिशिंग? बिकॉज a fish cannot scream. मछली जो है वो चीख नहीं सकती है, इसलिए कोई बैन नहीं करता. शेर दहाड़ता है, पक्षी जो है वो चीखते हैं, क्या कहते हैं, जो भी करते हैं, इसलिए बैन है. मछली चीख नहीं पाती, इसलिए बैन नहीं है. दर्द उतना ही है या फिर शायद उससे भी ज्यादा है, बट चीख नहीं पाती, इसलिए मछलियों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, कोई नहीं कहता बैन फिशिंग. बट इसका अब लिटरेचर से क्या वो है? सिमिलरली हमारे समाज में, समाज की कोई कलेक्टिव वॉइस नहीं है ना? आप देखिए, इतने सारे दुष्कर्म होते हैं, इतने सारे बुरी चीजें होती हैं हमारे समाज में, आवाजें थोड़ी बहुत उठती हैं, उसके बाद दब जाती हैं, है ना? कलकत्ता में तो कुछ भी हो, दुर्गा पूजा अगर आ गया, बस सब भूल जाते हैं, राइट? तो उस वो चीख कहां से निकलेगी? वो चीख आर्ट लाता है. लिटरेचर हो, स्कल्पचरिंग हो, ड्राइंग हो, गाना बनाना हो, डांस हो, पिक्चर बनाना हो, any form of art is the collective voice of the society, because the society is voiceless. It is the vocal cords of the society. Exactly, that is the word that Javed Akhtar used, that art is the vocal cord of society, and that is why it is important to write fiction or to add masala to your story, because when you add masala, then only people will read. Otherwise it is as good as any course book. आई मीन, आप खुद सोचिए, आप लेक्चर देखते हैं, आदर्श इस बार री इन्फोर्समेंट लर्निंग लियो. आप सोचो, बालारामन सर जिस हिसाब से री इन्फोर्समेंट लर्निंग पढ़ाते हैं, कितना मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि वो एकदम मजे से पढ़ाते हैं. अगर वो एकदम रोबोट की तरह, हाँ हाँ ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये लिख लो, अगर वो साइकिल चलाने वाला एग्जाम्पल वो ना देते, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा होगा, डिग्री लेवल पे आएंगे पढ़ेंगे. साइकिल चलाने वाला एग्जाम्पल, आई एम प्रीटी श्योर आदर्श वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उस एग्जाम्पल के बगैर भी वो पढ़ा सकते थे, बट उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने वो एग्जाम्पल यूज किया तो आपको समझ में आया. ये मसाला डालना जरूरी है ताकि आप उसको ग्रास्प कर सको ऑन एन इमोशनल लेवल. टोल्किन ने हॉबिट्स की बात कही ताकि हमें ये पता चले कि ये साइज में इतने छोटे हैं, इनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी अच्छाई के लिए जो जंग लड़ी गई, सबसे बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी. इसीलिए बैटमैन जैसा कैरेक्टर जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, वो लड़ता है तो हमें हमें दिखता है, हम, हमारे पास पैसा नहीं है, बट स्टिल हम देख सकते हैं कि हाँ, ये एक इंसान है, ये लड़ सकता है. अच्छाई से बुराई की लड़ाई हो, एट द क्रक्स इट इज अच्छाई से बुराई की लड़ाई, राइट? और उसमें अच्छाई की जीत होनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए इन कहानियों को लिखा जाता है. ये दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज जो है वो इम्परफेक्ट हैं, हमारे हीरोज ने नाकामयाबी हासिल की है, ठीक है, ड्रैगन से लड़ने गए, पिट के आ गए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि ये जो छोटे छोटे काम है, ये अच्छाई को जीत दिलाते हैं, और वो चीज ताकि हम समझ सके अच्छे से, इसलिए फिक्शन में मसाला डाला जाता है. ये मेरा आंसर है. अगर कोई एलैबोरेट करना चाहे तो प्लीज टर्न योर माइक ऑन. इफ आई मिस्ड ऑन समथिंग, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज यूज द चैट बॉक्स. और एक है ना, ये वो एक वर्ड तो हमने सुना होगा, एक फ्रेज है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वहां पे नाव से नदी पार करने की बात हो रही है ना? अब मान लो अगर तुम मैथ का एग्जाम पढ़ रहे हो, मैथ के एग्जाम के लिए, पर हो नहीं पा रहा है, उस पर ये थोड़ी ना कि तुम चप्पू चला रहे हो नाव में लिटरली, बट नाव को पार करना, नाव से नदी पार करना, वो बोलता है ना कि मझधार से वो पार नहीं होगा, अगर कोशिश नहीं करोगे, अगर कोशिश करोगे तभी हार नहीं होगी. तो
वो वहां भी मसाला डाला है, राइट, ताकि तुम सोच सको कि ये काम इतना कठिन है, ये किसके बराबर है ना। जैसे कहीं पे मैंने पढ़ा था कि ये जो ड्रैगन्स वाली कहानियां है ना, मॉन्स्टर्स राक्षसों वाली कहानियां, ठीक है, फेरी टेल्स, ये आज भी रेलेवेंट है। राक्षस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ड्रैगन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जो योद्धा और नाइट्स या जो भी कर लो, ये भी आज एग्जिस्ट करते हैं, और इनका एग्जिस्टेंस जरूरी है, इनका लड़ना जरूरी है, इनका जीतना जरूरी है। तो इन कहानियों की रेलेवेंस हमेशा रहेगी। अदरवाइज हम मेरी दादी की डायरी जैसा पढ़ते रहेंगे कि हाँ आलू इतना लिया था, इसको इतना उधार दिया था, उसके हाथ से सीधा पैसा नहीं लेना है, ये वो। What about love quotes? I'm not sure about love quotes. Sneha said the answer lies in the answer of why one reads fiction. Absolutely, absolutely. Abhishek bhaiya, would you like to add anything? I think we all would, love to hear something from you on this. Regarding, ये भैया जैसे आदर्श ने पूछा कि what is the need of fiction? I think you have covered it, sir, and I don't have much to add. हाँ, लेकिन एक पर्सपेक्टिव मैं ये जरूर देना चाहूँगा कि वो जो दादी की जो बोरिंग कहानी है या बोरिंग डायरी है, आप समय को भी तो देखो। एक जमाने में वो कभी बोरिंग नहीं भी रही होगी, आज से 200 साल पहले या 150 साल पहले। आज भले बोरिंग है, लेकिन आज जैसे आप टोल्कीन को कह रहे हो, हु नोज कि आज से 100 साल के बाद के लोग जिनका अटेंशन स्पैन इतना कम हो कि वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी बोरिंग कहने लगे। तो ये फ्रेम भी जरूर देखिए कि हाँ, सही बात है कि ओल्ड पीपल दे यूज टू राइट लाइक दैट कि आज उससे बात नहीं करना या उससे नहीं करना, बट इन अ वे जो सो कॉल्ड आपने मसाला बोला, आई थिंक द डेफिनेशन ऑफ स्पाइस चेंजेस ओवर टाइम। ये मैं खाली एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। बहुत बहुत सही बात, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात कही है। वही काफी अच्छा, मतलब ये इस हिसाब से तो नहीं सोचा था, काफी सही था ये अभिषेक भैया का। और आप भी इतना लंबा, मतलब लंबा ऐसे सार्कास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, तो अरे इतना डेप्थ हाँ में हाँ, मैं आंसर दिया, समझ गया, इतना हाँ। डेप्थ में आंसर था, वो भी परफेक्ट है उसके लिए। तो वही है। बस क्या आ गया। हाँ, बट एक देखना बस कभी कभार, लास्ट हाँ मैसेज एक बार बस पढ़ लेना फिर। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। बट वही आदर्श, जब आप कुछ पढ़ोगे ना, तो देखना आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट कर जाओगे, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या ना हो। आदर्श कह रहे हैं कि आई मीन राइटिंग अबाउट एन एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग अबाउट समवन्स आईज विदाउट एक्चुअली सीइंग इट। आई थिंक दैट स्नेहा इज सेइंग, वो तो मैं करती हूँ। बर्लिन बर्लिन कह रही है कि आई थिंक व्हाट आदर्श ब्रो इज सेइंग इज टॉकिंग अबाउट लव विदाउट एक्चुअली फीलिंग इट। Can we take it as credible or just an overhyped, unrealistic version of what they think it would be like? I think अगर स्पेक्यूलेट कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। अगर मतलब इंसान सोचता तो है ना, हम सब सोचते हैं कि जब ये नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा, ये वाला इस कॉलेज में घुस गया तो ये कर लूंगा, राइट। तो आई थिंक अगर कोई चीज हमने अभी तक फील ना की हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके बारे में हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियल है, राइट। गलत हो सकता है, कम हो सकता है, बट आई गेस ये सोचना, मान लो अगर आंखों की बात हो रही है, अगर मान लीजिए आपको कोई पसंद है, और कभी आपने ढंग से उनकी आंखों को ऑब्वियसली देखा नहीं है, मतलब शायद कभी कोई दिख गया, आपको अच्छा लगा, आप उस बारे में लिखना चाहते हैं, तो आई गेस आप सोच तो सकते ही हैं कि हाँ उसकी आंखें इतनी सुंदर होंगी, है ना। तो आई गेस वो किया जा सकता है। तो आई फील दैट, आई मीन उसमें क्रेडिबिलिटी की बात ये इस हिसाब से तो नहीं है ना कि सच्ची में उनकी आंखें अच्छी हैं कि नहीं, है ना। आई मीन अगर क्रेडिबिलिटी की बात आए तो फिर तो हर चीज रिलेटिव है, जैसे अभिषेक भैया ने भी कहा ना
कि जो चीज हो सकता है, दादी वाली जो बात मैंने कही, हो सकता है उसमें भी कुछ हो ऐसा जो पढ़ने लायक हो, है ना। हो सकता है मुझे, जस्ट बिकॉज मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची में पढ़ने लायक ना हो, है ना। तो आई थिंक क्रेडिबिलिटी की बात से ज्यादा ये हो सकता है कि कि हम स्पेकुलेट करते हैं तो वो भी जमता है, मतलब मेरे को तो जमेगा कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो एक आशा है, जो एक होप है, वो भी बहुत जरूरी है। स्नेहा कह रही है अभी क्या मतलब कि सिंगल लोग रोमांटिक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ सीकर। आदर्श कह रहे हैं मेरा मतलब असलियत में महसूस करके लिखना। हाँ, मतलब असलियत में महसूस करके लिखना अपने अपने तरीके से सही है, बट ये सोचना कि कैसा हो सकता है, वो भी अपने हिसाब से सही है। मैं फैक्ट्स ऑफ है, मैं इमोशंस का कह रहा हूँ, दैट इज व्हाट, हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग कि क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड, है ना। जैसे अगर आप देख लो साइंस में भी क्या होता है कि हम कुछ स्पेकुलेट करते हैं, हम एक थ्योरी सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर उसके पीछे का मैथ हम सोचते हैं कि अच्छा तो मे बी ये ऐसे काम करेगा। अगर आप देखिए न्यूटन के बारे में, तो व्हेन न्यूटन वाज ट्राइंग टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ द हेवनली बॉडीज, तब कैलकुलस वगैरह नहीं था, राइट। तो उन्होंने सोचा कि कैसे क्या हो सकता है, फिर उन्होंने कैलकुलस का इजाद किया, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह लागू होता है कि जस्ट बिकॉज आपने कुछ महसूस नहीं किया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते या उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। स्नेहा कह रही है isn't writing all about making people feel through their words, और इसके लिए तो बस रियलिटी पे डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रियलिटी में देखिए, रियलिटी क्या है, हम बोलते हैं रियलिटी। रियलिटी क्या है, जो आज हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है उतना ही ना। बट देखिए हमारे आसपास जो हो रहा है उसको भी हम एक तरीके से ही परसीव करते हैं, 3 डायमेंशन हम परसीव कर सकते हैं, ठीक है। हम बस 3 डायमेंशंस को परसीव कर रहे हैं, जो नहीं परसीव कर पा रहे हैं क्या वो नहीं हो रहा है, वो भी एक चीज है। रियलिटी में भी इमेजिनेशन का तड़का पड़ता है, तभी वो सबको रुलाता है या फिर, हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बलिन लीव की हैं, वो थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। कैलकुलस, जस्ट इमेजिनेशन नाउ रियलिटी, एग्जैक्टली। और वो इमेजिनेशन भी क्या, इट वाज अ यू नो इट वाज अ educated guess, not an educated guess क्या, it was an educated theory, it was an educated speculation कि हाँ भाई ऐसा होगा, इसको चलो ट्राई करते हैं। स्नेहा कह रही है जब तक कोई इमेजिन करके फील नहीं करता वो कभी भी नहीं लिख पाएगा इस तरह से कि आप फील करो। स्वर्ण कह रहे हैं वी कैन ओनली हियर अ लिमिटेड रेंज ऑफ ऑडियोज, उसके आगे क्या है वो एग्जिस्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइटिंग इजंट अ रेस और साइंस की जल्दी जल्दी लिखे या फैक्ट्स लिखे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू, आई टोटली एग्री। और राइटिंग ये भी है कि राइटिंग इज डजंट हैव टू बी फैक्चुअल, है ना। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, वो नैया नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो वाला जो है, तो वो जो है उसमें हम नैया थोड़ी ना चला रहे हैं, नदी में थोड़ी ना बैठे, हम तो अपने कमरे में है, टेबल पे है, अगर खटिया पे है, किताब खोल के बैठे हुए हैं, है ना। तो वही है फेरी टेल्स। हाँ वही, फेरी टेल्स में भी सेम, राक्षस वगैरह तो वही है, दिन के दिन हमें जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, राक्षस तो कितनी ही बार घूम रहे हैं। हाँ पर वो शायद इतने बड़े झबरे बालों वाले एकदम राक्षसी बड़े बड़े दांत वैसे ना हो, पर कम शैतान तो है नहीं वो। तो वही, बस सुंदर सजाने का चीज है। और आदर्श आप तो एस्थेटिक आदमी हो, आप जैसे सुंदर से अपनी साइकिल को सजाते हो या कोई और चीज जो आप करते हो, ठीक है। बाय द वे गाइस, आदर्श ऑल्दो ही इज क्वेश्चनिंग दिस थिंग, बट ही इज अ वेरी वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। है, आप सबने देखा होगा उसको चीजें बिल्ड करते हुए, फोटो वोटो डाली है, शेयर किया है। So he's tremendously talented, and I have no, like, it's not like I have to mince any word or anything. My words mince करके ही बोल रहा हूँ. Adarsh is tremendously talented. Swan is saying it can be as fictional as an elephant flying in the clouds, and then he sprays water from his trunk to cause rain. ट्रैक से पत्थर उठा के स्टार बना देते हैं वो. Absolutely, he's crazy.
he is contrite. नहीं, I think he is, you know, I think that's a very genuine query कि इसकी जरूरत क्या है. He is appreciating it, but what is the need? I think that's a very genuine question. Very genuine question. अरे ये क्वेश्चन मतलब यही जो पहले क्वेश्चन किया उसी को बोल रहे हो ना? हाँ, absolutely. वो मतलब वही कुछ साल पहले वो ऐसा चुप गया था, हम्म तो वो ऐसा क्लैरिटी नहीं मिल पाया. क्लैरिटी क्या मतलब एक्सेप्टेंस वाली बात होगी. Right. मतलब ये माइंडसेट समझने आ रह गया वो कि हम्म कैसे लिखते हैं. राइट. नहीं, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई मीन ये बहुत बढ़िया सवाल है कि इसकी जरूरत क्या है, इससे क्या मिल रहा है. और सवाल करना बहुत सही चीज है ब्रो. मैं काफी काफी अनफेयर लगा मेरे को. कुछ मैं रीड किया था हम्म तो काफी अनफेयर लगा कि जब ये रियलिटी से लेना देना नहीं है तो ये लिख के मतलब कैसा हो. कोई ये सही से वर्ड नहीं. जैसे रिलेटिबिलिटी वाली बात होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप वन पीस देखते हो, वन पीस के फैन हो आप, है ना. तो वन पीस जो है वो जो है उसमें आप देखो, उसमें भी पायरेट्स हैं, बड़े बड़े राक्षसी काइडो है, ठीक है, ये है वो है, फिश पीपल है ना, आधे इंसान आधे मछली है, ऐसे लोग भी है. पर देखिए, स्पॉइलर मत दो बाकी को. हाँ नहीं, मैं बाकी सबको स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है. ड्रैगन्स है और एक बहुत बड़ा हाथी है जो कॉन्टिनेंट्स जितना बड़ा है, राइट. तो देखिए वो सच्चाई से बहुत परे है. पर कहीं ना कहीं वन पीस ने आपको रुलाया है ना. जब वो बच्ची होती है ना छोटी सी, जो स्ट्रॉ हैट बनाती है, उसके पास थोड़ा सा ही चावल होता है, पर वो लूफी को खाने दे देती है बिकॉज वो, है ना. तो वही, तो देखो रिलेट हुआ कि नहीं, है ना. तो वही है कि है. हाँ, तो देखो उसमें मसाला है, पर वो मसाला आपको रिलेट किया, आप रिलेट कर पाए. तो एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए वो मसाला बहुत जरूरी है. अच्छा खाना, जैसे अच्छे खाने के लिए भी स्पाइसेस जरूरी है, वैसे ही अच्छी कहानी के लिए भी तड़का जरूरी है. सो आई मस्ट से कि स्वर्ण की इस कविता ने, नॉट कविता, स्वर्ण के इस प्रोज ने, इस कहानी ने हम सबको बहुत ही एक सेंट्रल लेवल पे आके चीजों को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया. हमने जो क्वेश्चंस या जिन चीजों पे आज बात की, वो ऐसे नहीं थे कि हमने सीधे स्वर्ण की किसी लाइन से उठा लिए, राइट. हमने उन चीजों पे डिस्कस किया जिनके आधार पे स्वर्ण ने ये चीज लिखी है. और आई थिंक स्वर्ण ने जो पूरी इस चीज को, आफ्टर लाइफ को डिफाइन किया, आई गेस ये आप सभी समझने में सक्षम रहे होंगे कि उन्होंने आफ्टर लाइफ के बारे में बात की है, राइट. ये जो दो लोग हैं ये दोबारा मिले हैं, एंड अब इन्हें और अलग होने का कोई वो नहीं है. आई एम रियली सॉरी, आई थिंक अभिषेक भैया ने माइक ऑन किया, प्लीज भैया. स्वर्ण जो बोलना चाह रहा था एक्चुअली, ये तो सबको ही डीप डाउन वी ऑल होप कि इस तरह का आफ्टर लाइफ मिले. दो मोस्ट ऑफ अस डोंट, आई मीन कोई एक्सप्लिसिटली हो सकता है एडमिट ना करे, बट सम ऑफ अमॉन्गस्ट अस वो इस तरह का आफ्टर लाइफ के लिए दे डू टेंड टू होप कि सब अच्छा हो जाएगा, या चीज़ें जो इवेंचुअलिटी है या समथिंग की पीपल विल लीव या ऐसे फीलिंग ऑफ ड्रेड वो नहीं आएगी. तो डीप डाउन वी ऑल टेंड टू लुक और आवर थॉट्स मिरर फॉर सच काइंड ऑफ आफ्टर लाइफ. राइट, एब्सोल्युटली. फिर से रोहित महतो आ गया मतलब. आया था, आई थिंक अभी फिर से चला गया वो. ठीक ठीक ठीक. तो या द पॉइंट, तो जैसे अभिषेक भैया ने कहा कि मतलब हम सब किसी ना किसी लेवल पे कभी ना कभी हम ये उम्मीद करते ही हैं कि कि
जब सब खत्म हो जाएगा तब शायद एक नई शुरुआत होगी। और जो हमें कहते हैं ना कि कोई आज जाएगा कोई कल, पर आई गेस मतलब पर्सनली, हालांकि मेरे थोड़े व्यूज अलग है, बट वो मैटर नहीं करता है। अगर ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद अगर हम उन सब से मिल सके जो हमारे लव्ड वंस है, हमारे करीबी है, जो शायद किसी वक्त हमें छोड़ के चले गए, तो आई गेस उससे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं होगी। बट एट द सेम टाइम जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमें ये कोशिश करनी होगी, करती रहनी चाहिए ऑब्वियसली, एंड ऑफ कोर्स ये हम सब जानते हैं, आप सब अच्छे लोग हैं, आई एम प्रीटी श्योर दैट यू नो दैट you guys and us, like we all have to treat people in a very good way, in a nice way, the way we want to be treated in this life itself. Bro, मुझे ये सुन के भी पसीना आ रहा है कि मैं मिल पाऊंगा दोबारा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब जो चाहते हैं कभी ना कभी वो सब हमें जरूर मिलेगा। और जब तक नहीं मिलता तब तक वी कैन बी गुड पीपल, बिकॉज if you guys again, I would like to make a Lord of the Rings wala reference that Sam and Frodo did it, so I guess we can also. Anyway, I think it has been a great phase. I mean, this particular phase of Ink What You Think has been really great. uh, I mean, I remember the first Ink What You Think started with Anusha's poem. Anusha is also here. Not poem exactly, I'm really sorry. Her prose as well. And it sort of, it also invoked a discussion which was on a very deep level. So did Swan's entry as well. So congratulations, Swan, for such a beautiful uh, writing. And I would also like to thank you that you decided to pen something like this and share it with all of us. Would you like to add something about it to the discussion? स्नेहा सिंह, मेरे को इधर झेल रहे हैं लोग, इतना काफी नहीं है, उनको आफ्टर लाइफ में भी मेरे को झेलना होगा। त्राहीमाम। आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर वेटिंग। कोई जल्दबाजी नहीं है जाने की, बट आई एम प्रीटी श्योर। शुक्रिया ब्रदर, स्वर्ण इज सेइंग, hey, hey, I can't open my mic, but just wanted to say spread love because it is free. And that is the sweetest thing. I mean, come on, he's the agent of love. So, guys, by the way, I want you to remember, and I want you to remember forever that the pen name that Swan uses, the pseudonym that Swan uses is agent of love. Okay. So, wherever you see something that has been shared by the agent of love, remember it is Swan Gaurav Verma. And if possible, do read his work that he has been sharing in the Writers Cafe. Okay. I'm not saying that you have to read all the 84 of them at a stretch, but do read them. Okay. Okay, then let's end this beautiful phase. And thank you, Swan, again. And thank you, everyone, for adding to this session of Ink What You Think. A beautiful question, Adarsh. Beautiful additions to the discussion, Abhishek Bhaiya. And Sneha, thank you for keeping the chat box quirky and funny. And everyone else, Berlin, Anusha, I think, who else? Who else? I think Shadow. Shadow had also written something. He had also added some point at the beginning of the discussion. I think Okti is sleepy. He has been working really hard for a long time, so we can spare him. Berlin also has written something really nice. She had elaborated on Adarsh's question. I think she's not in the meet right now, so I think she'll join back later on. Having said that, so let's end this phase of the session, and then we'll start with Serum Slot.